और 1 साल पहले कहते ये किसी के घर में कर रहे थे तो अचानक से बिजली की वायर कहते इनके शरीर पर गिरी और जैसे गिरी कहते करंट लगा। वो करंट इतना डेंजरस था, 11,000 वोल्ट का करंट इन्हें लगा और 1 घंटा कंटिन्यू करंट लगता रहा क्योंकि कोई आसपास नहीं था और इनका शरीर इतना ओके, मेरी बात सुनो टीम। इस फोटोज को YouTube की चिंता ना करते हुए हम क्लियर दिखा सकते हैं तो दिखाओ, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। ओके, YouTube की चिंता छोड़ दो। अपना काम कर रहे थे तो अचानक से बिजली की वायर कहते इनके शरीर पर गिरी और जैसे गिरी कहते करंट लगा। वो करंट इतना डेंजरस था, 11,000 वोल्ट का करंट इन्हें लगा और 1 घंटा कंटिन्यू करंट लगता रहा क्योंकि कोई आसपास नहीं था और इनका शरीर इतना ओके, मेरी बात सुनो टीम। इस फोटोज को YouTube की चिंता ना करते हुए हम क्लियर दिखा सकते हैं तो दिखाओ, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर है। ओके, YouTube की चिंता छोड़ दो। ओके, अमरीक सिंह जी, जब आपको ये हुआ तो आपको कहां रेफर किया गया, किस हॉस्पिटल में आप गए थे? मैंने जिंद्रा हॉस्पिटल जी पटियाले। उसके बाद कहां गए? उन्होंने 1 रात रखा जी, उस तो बाद उन्होंने जवाब देता जी। फिर कितने गए तुम? ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ PGI ਚ। अच्छा, किन्ने हॉस्पिटल तुम ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਆਕਸੀਜਨ, ਫੂਡ ਪਾਈਪ, ਯੂਰਿਨ ਪਾਈਪ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਲਾਤਾ? ਹਾਂ ਆਸੂ ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈਗੇ? ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆ, ਵੀ ਅੰਗ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਆ ਇਹਦੇ। ਅੰਗ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਣੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਨਾਲ? ਹਾਂ ਜੀ ਵਾਈਫ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਮੀਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੀਨਾ। ਮੀਨਾ ਜੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੰਟ ਲੱਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਲਿਖਵਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਬਚਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਬਸ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦਾ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਿਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ? ਲਾਓ ਜਰਾ ਟੋਪੀ ਆਪਣੀ। ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸਿਰ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀਗੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। 1 ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕੀਤਾ ਦੂਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਸਿਗਨੇਚਰ ਵੀ ਕਰਾ ਲਏ? ਹਾਂਜੀ। ਹੱਥ ਪੈਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਖੜੇ ਕਰਤੇ, ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਸੀਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ ਕਰਦੇ ਜਦੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਵੀ ਚੰਗਿਆਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਰੋਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਫਿਰ ਫਰਕ ਕਿਵੇਂ ਪਿਆ? ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਬਾਰੇ? ਸਾਡੀ ਦੀਦੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ ਚਰਚ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੂਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜੂਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਔਰ ਇਹ ਜ਼ੂਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ। ਸਿਰ ਤੇ 2 ਵਾਰੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਫੋਟੋਆਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਰੇ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ हैं, जो बीमारी की फोटोज है इनकी दिखाई जा। ओके, 1 मिनट, ए पीछे करो। ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਂਗਲੀਆਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਦੁਬਾਰਾ ਦੱਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ? ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ। ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ। ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ। ये कौन है? अमरीक। फुल बॉडी इन्फेक्शन। खुदावंद का आत्मा तुम्हें छुए, तुम्हें हील करे, सारी इन्फेक्शन फिनिश हो, ठंडापन महसूस हो, यीशु तुम्हें आजाद करे। अमरीक कामरा चर्च में गवाही देने के लिए खड़ा हो। आमीन। चाहिए बरकत हमारी। दिखाओ जी अपने हाथ, हम दिखाओ हाथ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਠੰਡਕ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਠੰਡਕ ਹੋਈ? ਠੰਡਕ ਹੋਈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਣਦੇ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਚਰਚ ਬਾਰੇ? ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਜਾਂਦੀ ਜੀ। ਸਿਸਟਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਹੋਈ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਬਦਲ ਲਓ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ। 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੂਗਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇਲਾਜ ਤੇ ਲਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੱਕ? 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲੱਗੇ। 5 ਲੱਖ। ਦੇਖਿਆ? ਆ ਦਿਖਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਜਿਹੜੇ ਫ੍ਰੀ ਚ ਯਿਸੂ ਨੇ ਠੀਕ ਕੀਤੇ। ਯਿਸੂ ਧਰਮ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦਾ ਏ। ਪੂਰਾ ਦਿਖਾ। ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦਾ ਏ। ਓ ਜੀਸਸ ਦੀ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦਾ ਏ। ਲੋਕੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦਾ ਏ। ਲੋਕੀਆਂ ਦੀ ਮੇਰਾ ਯਿਸੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦਾ ਏ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਧਰਮ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਧਰਮ ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦਾ ਏ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਹੁੰਦੀ ਏ ਉਹ सुनो, बैठ जाओ, अभी शुरू हुआ है। अमरीक रोक लो कोई ने? कोई रोक सकता ही नहीं? जिसने अपनी आंखों से यीशु को देखा हो और चखा हो, उसे रोक सकते हो? तुम उनको रोक सकते हो जिसने सिर्फ मीडिया की बातें सुनी है। तुम उनको नहीं रोक पाओगे जिसने यीशु को चखा है, जिसने स्वाद देख लिया है। ਲੋਕ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਢਾਬਾ ਕਿਤੇ ਮਿਲ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ,
जिन्ना मर्जी बंदा अमीर हो जाए यार, उथों चाह पीनी है, उथे कुलचे खा के आने। अभी लोग सोच रहे पता नहीं कितनी का टेंशन चल रही है। हालेलुया। जिसने चख लिया परमेश्वर को, भाई साहब तुम उसके गले पे तलवार भी रख दोगे, वो तलवार रखता रखता भी यीशु यीशु बोलेगा। अब क्या मालूम किसी को क्या पवित्र आत्मा होता है, क्या हीलिंग होती। वो तो पेशेंट है, पीजीआई में पड़ा है, ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन हो रहे, इन्फेक्शन खत्म नहीं हो रही। कहता ये ठंडक महसूस हुई थी, पता नहीं क्या हुआ लेकिन ठंडक फील हुई। उस ऑडियो प्रेयर को फिर से सुनेंगे हम शुरू से। ये कौन है? अमरीक। फुल बॉडी इन्फेक्शन। और कई बार जब प्रेयर हो रही होती है तो सामने लिखा होता है ना, तो पूरा केस नहीं लिखा होता कि हॉस्पिटल में है, बहुत सीरियस है, सारी फुल बॉडी इन्फेक्शन या ये है वो है। फिर से सुनेंगे इसको। ये कौन है? अमरीक। फुल बॉडी इन्फेक्शन। खुदावंद का आत्मा तुम्हें छुए, तुम्हें हील करे, सारी इन्फेक्शन फिनिश हो, ठंडापन महसूस हो, यीशु तुम्हें आजाद करे। अमरीक काम्ब्रा चर्च में गवाही देने के लिए खड़ा हो। ओह जीसस, तारीफ के साथ खुदा बन गए, स्वर्ग में शोर मचा दो। हालेलुया, जोर से हालेलुया। ये देख लो भी, अमरीक सिंह की शक्ल भी दिखाओ साथ साथ में, एक कैमरा पे सामने सामने। हाँ हाँ, और एक बार जूम वाली वो निकालो, जूम वाली वो निकालो जहां पे इनका फेस नजर आ रहा है, जूम वाली प्रेयर। हाँ, और ये जूम वाली प्रेयर इंटरनेट पे पड़ी होगी, 16/7/2023। जाओ निकालो, देखो, चेक करो असली है कि नकली है। जाओ जाओ चेक करो, सारे काम अच्छी तरह से करने चाहिए। जीसस ने कहा जब वो कुत्ते की तरह हाथ चाटता हुआ आया, he worshiped him, कहता प्रभु अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने आगे ताना नहीं मारा, जे तू परमेश्वर है, जे तू चंगा करना आया है, जे तू साडे लिए आया थे करके विखा। उसको क्या लेना देना, ये कोई बिजनेस थोड़ी है। कितने पैसे लिए इनसे प्रेयर करने के लिए? 5 लाख हॉस्पिटल में लगाया, कितने पैसे दिए प्रेयर करे? नथिंग, जीरो, कोई पैसा नहीं, जीरो दिए होंगे, चर्च ने लिए नहीं होंगे प्रेयर करने के लिए। हाँ कि चला आजा, तेरे पास पैसे नहीं है, 200 रुपया उठा, आजा किराया ले ले, लेकिन लिए नहीं होंगे चर्च ने। अगर चर्च ने पैसे नहीं लेने हीलिंग करने के लिए तो भी करनी क्यों है? इतनी सरदर्दी क्या है? पैसा कमाने के लिए लोग आए, जितना लोग यहां पे पैसा देते हैं, मैं अमेरिका में अगर चला जाऊं तो एक दिन की वहां मेरी इनकम है पर्सनल। ये तो मेरी पर्सनल भी नहीं, ये तो है चर्च की। हालेलुया। उसने कहा अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। जीसस ने कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। जीसस से शिफा पानी आसान नहीं है इतनी जितना लोग सोचते हैं। एक भाई वो है जो 2017 से परमेश्वर में था, चर्च का मेंबर था, फिर भी उसके पैर में रोग हो गया। एक वो है जो यीशु को जानता ही नहीं था बिल्कुल भी, और दोनों को परमेश्वर ने चंगा किया। दोनों की टेस्टिमनी है। वो ऑयल वाली वीडियो को साथ साथ आपने देखा था अभी, कैसे उस पे ऑयल लग रहा था, अमृत सेक्शन। हालेलुया। कितने समझ रहे हैं इन चीजों को? एक वो है जो 2017 से चर्च आ रहा था लेकिन सडनली बीमार हो गया, एक जख्म शुरू हुआ, जख्म बढ़ता 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 डॉक्टर ने कहा टांग काटनी पड़ेगी अब। और दूसरा कौन? जो यीशु को नहीं जानता, उसका एक रिश्तेदार परमेश्वर को जानता है, उसकी एक बहन यीशु मसीह में है, और वो कंडीशन देख के कह रही है कि क्या हाल बना रखा है तुम लोगों ने। और 11,000 वोल्ट का करंट लगा था, और सिस्टर ने कहा कि क्या ऑपरेशन के बाद ऑपरेशन करवाई जा रहे हो और फिर भी ठीक नहीं हो रहे हो, चलो यीशु मसीह के पास, तुम्हारी प्रार्थना करवाते तुम ठीक हो जाओ। कोई नहीं जानता, परमेश्वर को नहीं जानता, परिवार में यीशु मसीह को नहीं जानता, पवित्र आत्मा को नहीं जानता, बस इतना पता है कि जब प्रेयर हुई तो मुझे ठंडक महसूस हुई। और अगर अब भी हमारी आंखें बंद रहें तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं हो सकता। फिर इनके एड्रेस से तुम्हारे पास दे दिए, जाओ देखो और परखो जांचो क्या हुआ। हालेलुया। हजारों लाखों गवाहियां हैं। कोई इतना अमीर नहीं है कि करोड़ों गवाहियों को खरीद सके। 1 लाख गवाही